میرا گلا ختم ہو گیا نے بس مینوں تو انصاف چاہیے میرے کوئی پڑا نہیں آیا کوئی آیا نہیں پولیس والا کوئی نہیں آیا کتنے دن ہو گئے 7 دن ہو گئے نے 6-7 دن ہو گئے کوئی بھی نہیں آیا مینوں انصاف چاہیے مینوں اور کچھ نہیں چاہیے مینوں میرے انصاف چاہیے مینوں گل کو نہیں آ رہی مینوں انصاف چاہیے بھائی پانی مانگ رہا تھا بھائی کو ہوش تھی ابھی ہوش تھی تو کہا پانی دے دو ہماری مسائی وہ سبزی لے کے جا رہی تھی پانی مانگ رہا تھا کہتی پیچھے ہو جاؤ کوئی نہ آئے ہمارے گھر کا معاملہ جب بھی ہمارے ساتھ فون پہ بات ہو یا ملاقات ہو وہ اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے مارنے کی دھمکی دے رہی یہ مجھے مروانے والی کسی کے ذریعے سے اس کا کہنا تھا کہ مجھے مروانے والی عنقریب مجھے مروانے والی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تلاش اور میں ہوں اینی رائے اس ٹائم ہم لوگ موجود ہیں قصور کے علاقے راؤ خان والا میں جہاں پر بیوی نے جو کہ 4 جوان بچوں کی ماں ہے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کی جان لے لی کیا معاملہ ہے کیا وقوع ہے کیوں اس نیج پر ان کی یہ شادی پہنچی جو اتنے برے طریقے سے ختم ہوئی اس کی فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے ان کے بھائی ان کی بوڑھی والدہ اور بہنیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور سارا واقعہ جانتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے بھائی کی شادی کو کتنا عرصہ گزر گیا تھا میرے بھائی کی شادی کو تقریباً 15 سال ہونے کو 15 سال کتنے بچے ہیں 4 بچے ہیں اس کے 4 بچوں کی ماں تھی یہ تو کیا لڑائی جھگڑا تھا آپس میں ان کا لڑائی جھگڑا پہلے تو ٹھیک تھے 4 بچوں تک ان کا معاملات سارے کے سارے ٹھیک تھے اچھا پھر جب سے یہ ملٹی میڈیا موبائل ہمارے گھر کے اندر گھسا ہے نا تو اس کی وجہ سے ساری وجوہات بڑھتی اس حد تک آ گئی اچھا تو بیچ میں ہر طرح کی بھائی اس کی خواہشیں پوری کرتا رہا گھر بیچنے کی قصور رہائش کی قصور کیا کام کرتا تھا بھائی آپ کا بھائی یہ کوکنگ کرتے تھے کوکنگ کا کام کرتے تھے رہائش یہیں پر تھی بھائی رہائش یہیں پر بچے بھی یہیں پر تھے 4 بیٹیوں کی ماں ہے وہ بیٹیاں بھی یہیں پر ہیں بالکل بیٹیاں بھی یہیں پر رہتی تھی کتنی عمر ہے بیٹی کی سب سے بڑی جو بڑی بیٹی کی عمر تقریباً 14 سال ہونے اچھا مطلب جوان بچیوں کی ماں ہے وہ تو جی بالکل تو کب سے پتا لگا بھائی کو کہ اس طرح کے معاملات ہیں اس کے بھائی کو جو اس وقت ہمارے سامنے جو واقعہ پیش آیا جو مقتول کا سالہ تھا یعنی کہ اس کی بیوی کا چھوٹا بھائی جس نے قتل کیا وہی بتایا کرتا تھا اپنی بہن کے قصے کے جی بہنوئی کے فلاں جگہ میں نے دیکھا باجی کو جاتے اس کے ساتھ جاتے وہ شک شبہ کے اندر بات رہ کر لوگوں کے درمیان آ کے لوگوں بڑوں کو ڈال کے تو وہ صلح وغیرہ کروا دیا کرتے تھے ان لوگوں کی اب آ کے ان کا ریلیشن جب موبائل کی وجہ سے پکڑا گیا ہے اچھا کون ہے جس کے ساتھ ریلیشن پکڑا گیا موبائل میں ایسا کیا پکڑ لیا تھا جس کی وجہ سے اتنی زیادہ بات بڑھ گئی وہ یا ان دونوں کے جاننے والے تھے کوئی قصور شہر کا رہائشی تھا اسی وجہ سے قصور شہر کا رہائشی ہونے کی وجہ سے اس نے قصور شہر جانے کی ضد کی کہ مجھے رہائش ہونا چاہتی تھی وہاں پر تقریباً 7-8 مہینے شفٹ رہی بھی ہے تقریباً 1 سال کے لگ بھگ اور وہاں پر وہ ان کا ریلیشن جب بڑھا ہے اور وہی بھائی جو اس کا جو پہلے اپنے بہنوئی کو بتایا کرتا تھا بعد میں وہ ساتھ ملا اس کے اچھا پہلے بتاتا تھا بہن کا کردار نہیں ٹھیک اور اس کے بعد بہن کا ہی دفاع کرنے کے لیے آ گیا اس کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا آہستہ آہستہ چل کے ریلیشن شپ جیسے ہی سامنے آیا ایک شخص کا تو اس نے بھائی نے ریگی کی یہاں سے گاؤں سے گیا ہے کام کرنے آیا تھا کوکنگ گاؤں میں کرنے آ جاتا تھا کیونکہ کاروبار اس کا زیادہ تر تو بکھرا یہیں پہ تھا اچھا گاؤں سے وہ گیا ہے تو اس نے ایک شخص کو پکڑا ہے اس کے ساتھ بائک پہ بیٹھی جاتے ہوئے اچھا اس کی بیوی جی اچھا کسی کے ساتھ اس کا نام نہیں پتا آپ کو وہ جو اس کا آشنا تھا جس کے ساتھ اس نے بتایا ہے بھائی نے بتایا ہے کیا نام بتایا مجید نام بتایا مجید کے ساتھ بیٹھ کر کہیں جا رہی تھی جی اس نے پکڑا ہے دونوں کو مجید کو بھی مارا ہے اس کو بھی مارا ہے اچھا تو اب ہم بھائی کو کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں بچوں کی وجہ سے چھوڑ دو چلو کوئی بات نہیں بچوں کی وجہ سے چھوڑ دو اس نے اس وقت ہی چھوڑنا چاہ رہے تھے پھر اس کے بڑوں کو ڈال کے آخرکار ہم نے صلح کروا دی اب یہ لڑائی کتنے عرصہ پہلے کی ہے یہ تقریباً 1 سال پہلے 1 سال پہلے کیا جب آپ کے بھائی نے اس کو پکڑا مجید نامی بندے کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا ریلیشن شپ گاؤں میں آ کے ہم روز اس کو منا کے لاتے بڑے ہم اس کے بڑے لا کے 3 دن سے نہیں گزارنے اور بھائی کے ساتھ کوئی نہ کوئی چپکلے شروع کر دینی اچھا اور آخرکار اس کا یہ نقصان ہمیں بھگتنا پڑا پھر لاتے تھے ہم سمجھتے شاید بھائی غلط ہے پھر وہ کیا کرتی تھی ہم تو بعض اوقات بڑے بھائی لاہور میں رہتے تھے میری ڈیوٹی اس طرح کی ہے کہ میں جہاں پہ ڈیوٹی لگ جائے
मैं यहाँ एज ए स्कॉलर हूँ, अच्छा रिलीजियस स्कॉलर, यानी ठीक कि है। जो आलिम होता है ठीक है। उसकी जहाँ ड्यूटी लगे नमाजें पढ़ाने की, बच्चों को पढ़ाने की, तो मेरी ड्यूटी कहीं ना कहीं होती थी, कहीं लाहौर अच्छा। में, अब इस बार हाल ही में मांगा मंडी में होता हूँ। अच्छा। हुआ ये है कि हमें कॉल करके बताना कि आपका भाई नशे की हालत में है, ये जब हम आते थे वो बिल्कुल ठीक। वैसे आपका भाई हालांकि नशा करता था कोई? ये हमें इस गांव के मोहल्ले दौरान ने लोगों ने बताया कि उसको को नींद की गोलियां वगैरह दी जाती थी, आपके जिसको भाई हम को? यूं कहने स्लो पॉइजनिंग सिस्टम। अच्छा, उसकी बीवी उसको जी जी, नींद की नेवी गोलियां की तरफ देती से थी। स्लो पॉइजनिंग अच्छा। सिस्टम, वो आपको पता है। फिर स्लो पॉइजनिंग इंसान 1 से 4 दफा ले ले तो साइको हो जाता है। ठीक है। तो ये मामला था उसके साथ। आप तो लोगों ने चेक नहीं करवाया कभी भाई के ऊपर? आप लोगों को नहीं लगा कि भाई को वाकई नींद की देखें- गोलियां दी जा रही हैं? देखें, आप दूर से ही मेरे पास आई, मेरे पास आप मेरी हालत पे डिपेंड करेंगी ना कि मेरी हालत मिलना कैसी। जुलना कम था। जी जी, भाई के पास जब हमने हफ्ते बाद मिलना है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सही जब वो उसकी बीवी की बात सुनते हैं तो वो कहते नहीं वो तो इसके हालत में है, वो इस हालत में। अच्छा। हालांकि वो बिल्कुल ठीक था। आप इस गांव के अंदर, इस इलाके के अंदर किसी से पूछ लिया जाए कि उसकी हालत नशे वाली तो है ही नहीं। तो अब उसके यहाँ से गए हुए, यानी कि इस घर से शिफ्ट हुए 8 माह तकरीबन हो गए थे। जी जी, और 8 माह से वो शहर में रह रही थी, शहर में रह रही थी, सिर्फ अपने ताल्लुकात के लिए, जो भी ताल्लुकात उसने इस जी। तरह के ताल्लुकात बनाए जी। हुए थे। अभी जो दोबारा से भाई ने उसको पकड़ा किसी के साथ, दोबारा से अल्लाह जाने, लोगों का तो यही कहना है कि दोबारा से पकड़ा है, लेकिन हमारे सामने यही आया कि उन दोनों की आपस में लड़ाई हुई। अच्छा, लड़ाई की वजह भी यही ना, अच्छा, लड़ाई की वजह ये थी उनकी आपस में बहस छिड़ जानी कि तुमने ये बात भी मनवा ली थी मुझसे ये बात भी मनवा ली, अब तो ये काम छोड़ दो, अब तो ये काम छोड़, बच्चों की खातिर छोड़ दो, अपने मरे हुए बाप का वास्ता है छोड़ दो। अच्छा, मतलब इतने 4 बेटियों की माँ होकर इतने धड़ल्ले से सब कुछ कर रही थी वो? धड़ल्ले से मुराद ये नहीं कि वो अपने शोर को झूठा करने की कोशिश, हर वक्त झूठा मानती करने नहीं की थी कि कोई नहीं थी। कुछ ऐसा है। हाँ जी, मानना ठीक ही है। नहीं कुछ भी हो जाए। तो मजीद आखिरकार नामी जो बंदा है जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, वो क्या आप लोगों की बरादरी का, या आपकी जो भाभी है उनकी बरादरी से ताल्लुक था नहीं, उसका? ना हमारी बरादरी से ताल्लुक, दूर अच्छा। दूर के हो जाए तो हो जाए। अच्छा, अलहदगी क्यों नहीं इख्तियार की आपके भाई ने? अगर इस तरह का अलहदगी पता लग गया इख्तियार था कि करने की किरदार मशकूक उसने है। अलहदगी इख्तियार करने की कोशिश उसने 1 साल में तकरीबन यूं समझ ले 12 दफ़ा की है। अच्छा, लेकिन मैं उससे छोटा था, ये भाई बड़े थे, वालदा थी, बच्चों की खातिर कहते, बच्चों की खातिर माफ़ कर दो, बच्चों की खातिर छोड़ दो, बच्चों की खातिर गुजारा कर लो। और ये बच्चों का वास्ता देते देते उसने बच्चों समेत ही ना बड़ी बेटी को भी साथ रखा। वो बड़ी, हम अहले मोहल्ला, आपको पता है, वो शहादत तो नहीं दे सकते लेकिन हमें तो बता सकते हैं। उन्होंने बताया कि बड़ी बेटी साथ खड़ी थी, उसने कहा कि मामू देखो वो आ गया। मतलब गली बड़ी से जैसे, मतलब औलाद ने माँ का साथ दिया? जी जी, बच्चियों ने माँ का साथ जी जी दिया? बिल्कुल। अच्छा, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह कि जिसकी तरबियत में, जिसकी सोबत में रहेंगे बच्चे, तो जाहिर है उसने तो उन्हीं की बात करनी, उसी की आपका बात। जो आपके भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्या इनकी तमाम जरूरतें पूरी करते थे, इनका ख्याल रखते थे, अखराजात इनके उठाते थे? आप मेरे से अलावा अहले मोहल्ला में से किसी से पूछ लें कि वो यहाँ गांव के इलाके के बड़े लोग भी, यहाँ तक कि औरतों का बंदों का भी कहना है कि नहीं, जो हमारा भाई था उसकी बीवी का पहनावा जो है वो आम औरतों जैसा नहीं है। अच्छा, यानी कि भाई इस कदर उसको खर्चे के हिसाब से खुला खर्चा उसे दिया करता था। मुझे बताइए कि जो मजीद है, इस सारे खेल में 8 माह पहले मजीद के साथ ताल्लुकात पकड़े गए, आपके भाई ने पकड़ा, क्या अभी तक मजीद ही कॉन्टिन्यूसली चल रहा था या दरमियान में कोई और भी ताल्लुक नहीं, बना? हमें मजीद के हवाले से ये पता चला था कि वो मुल्क छोड़ गया है। अच्छा, जी जी, मुल्क छोड़ गया। उसके बाद के साथ कांटेक्ट है या नहीं है ये अल्लाह बेहतर जानते या भाई जानते थे। अच्छा। भाई का ये कहना था, बस जब भी हमारे साथ फ़ोन पे बात हो या मुलाकात हो, वो उसका ये कहना था कि मुझे मारने की धमकी दे रही, ये मुझे मरवाने वाली किसी के ज़रिए से। यानी उसका बैकग्राउंड रिलेशनशिप का इस कदर था कि उसका कहना था कि मुझे मरवाने वाली, अनकरीब मुझे मरवाने वाली। अभी भाई ने बताया नहीं कि जब मजीद इस मुल्क में है ही नहीं तो जी। फिर भाभी किसके साथ ताल्लुकात में थी? उसने ये मजीद बात नहीं, वो मजीद वापसी आ चुका है, मजीद वापस आ गया है और वो ताल्लुक अभी भी वैसे ही कायम दायम है। अल्लाह जाने इस ताल्लुक के बारे में हम तो नहीं कहते, लेकिन पुराना ताल्लुक तो हमें पता है ना, जो भाई ने बताया। जो भाई ने पकड़ा उसको। जी जी। मजीद का इस पूरे जो केस है, इस पूरी कार्रवाई में कितना हाथ लगता है आपको? हमें तो मजीद सिर्फ अकेला ही नहीं लगता, क्योंकि उसका जो रिलेशनशिप सिस्टम था मजीद के अलावा भी इस गांव के काफ़ी लोगों से था।
तकरीबन ये भाई का कहना है, जितने अल्फाज हैं सारे भाई के हम आपको कॉपी करते ठीक है। हैं कि भाई का जो कहना वो था। अपना दुख आप लोगों से जी, शेयर जी, करते शेयर थे आपके करते भाई, थे। ठीक है। कि और भी मजीद भी लोग हैं? जी कहते हैं उसके अलावा भी उन्होंने अटैक करवाने की कोशिश की। रास्ते में बाज़ औक़ात जाते हुए कई लोग कहते हैं पीछा करते थे असलहे के जोर पर। वही अच्छा, बात- सिर्फ डराने के लिए, डराने के धमकाने लिए। के लिए। तो ये तो कार्रवाई उसके भाइयों ने उसके दिफा के लिए की है, यानी अगर भाई को अपनी बहन के ऊपर इतना शक है तो वो इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों करेंगे? भाई छोटा है। क्या क्या उम्र है भाई की? भाई की तकरीबन 17 से 18 साल अब हुई है। अच्छा, और इससे पहले वो खुद बताता रहा इससे अपनी पहले बहन वो के खुद बारे में सब बताता कुछ, और अब बहन के दिफा के लिए बहनोई को मार दिया। जी जी बिल्कुल। तो ये 17 से 18 साल का जो भाई है, इसने आकर आपके बहनोई पर हमला किया? जी जी बिल्कुल। और भी मजीद इनके रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। बेटा मेरिया गल्लां खत्म हो गईयां ने। अज मैनू तो इंसाफ चाहिदा। मेरे कोई पता नहीं आया, कोई आया नहीं पुलिस वाला। पुलिस वाला कोई नहीं आया? कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए ने। 6-7 दिन हो गए, कोई भी नहीं आया? कोई नहीं आया। मैनू इंसाफ चाहिदा, मैनू और कुछ नहीं चाहिदा। मैनू सिरे इंसाफ चाहिदा। मैनू गल को नहीं आ रही, मैनू इंसाफ चाहिदा। भाई पानी मांग रहा था, भाई को होश थी अभी? अभी होश थी तो कहा पानी दे दो। हमारी मसाई वो सब्जी लेके जा रही थी, पानी मांग रहा था, कहती पीछे हो जाओ कोई ना आए, हमारे घर का मामला। जब भी हमारे साथ फ़ोन पे बात हो या मुलाकात हो, वो उसका ये कहना था कि मुझे मारने की धमकी दे रही, ये मुझे मरवाने वाली, किसी के ज़रिए से उसका कहना था कि मुझे मरवाने वाली, अनकरीब मुझे मरवाने वाली। अनम इस टाइम हमारे साथ मौजूद है जो कि मकतूल की बहन है। सारा जो मामला है इनसे जानते हैं कि भाभी के ताल्लुकात कब से किसी गैर मर्द के साथ बन चुके थे, और उसके बाद भाभी ने अपने भाइयों और आशना के साथ मिलकर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों डाली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अन्ना मुझे ये बताओ, 14-15 साल हो गए तकरीबन आपके भाई की हाँ शादी जी को। 14। तो भाभी शुरू से ही ऐसी थी? शुरू से ही ऐसी थी, मगर भाई को नहीं पता था। अच्छा। हम नहीं बताते थे इस वजह से कि इनके दोनों के रिलेशनशिप खराब ना हो। ठीक है। जब भी आते हम आते मोबाइल पे लगी रहती थी, मोबाइल पे लगी रहती। अच्छा। खुद आना, खुद खाना बनाना, खुद अम्मी को भी खिलाना। उसने कभी सीधे मुँह बात ही नहीं करनी। शाम हुई है, दरवाजे बंद और कमरे में अच्छा। फोन पे लगी रहना। भाई को हमने कभी बताने की कोशिश करनी तो भाई ने कहा नहीं उसका कजन है, अपने किसी कजन से बात कर रही है। इस चीज पे भाई को कोई एतराज नहीं था? हम भी पास बैठे होते थे, कहती थी मेरा कजन है, मैं अपने खाला के बेटे से बात कर रही हूँ, मामू के बेटे से बात कर रही हूँ, ऐसे बात करती थी। फिर हमने भी कभी बात नहीं की। ये पहली दफा जैसे भाई ने बताया, उसके भाई ने आके बताया कि वो किसी के साथ जा रही है, उसको मार देना, आज उसको मार देना। अच्छा, बहन को मार देना है? बहन को मार देना। तो जब भाई भाग के गया, उसको पकड़ के लाया। अच्छा। किसी के साथ भाई ने बताया, उसके वो पता नहीं कौन है जिसके साथ वो पकड़ के लाया। और उसका जो यानी अभी तो आपके भाई ने पकड़ा, इससे पहले उसका भाई भी उसको पकड़ चुका है? हाँ जी। अच्छा। फिर वो पकड़ा, फिर उसका भाई जो जमील है ना, वो जमील भाई ने आके कहा ये तो बच्चा है, इसकी बात पे यकीन ना करो, ये तो बच्चा। उसको घर बैठा दिया। उसके बाद से भाई ने उसके ऊपर ना नजर रखनी शुरू कर दी थी। जहाँ जाना साथ जाना, जहाँ कहीं किसी ऐसी जगह पे ना जाने देना। जैसे खुद ही चली जाती थी, कसूर चली गई, मैं अपनी भाभी के साथ जा रही हूँ, मैं अपनी बहन के साथ जा रही हूँ, ऐसे चले जाना जहाँ मर्जी। फिर भाई ने कहना मैं इधर तू इधर, ऐसे उसका ध्यान रखते थे। अच्छा। हाँ। उसकी तो जवान बेटियां भी हैं, और जवान बेटियां भी जाहिर है अगर माँ गलत हो तो बेटियां भी इसी वजह से तो भाई ने नहीं ना, इसी वजह से तो हम कहते थे कि भाई इसको छोड़ दो। जब 3 साल से बस ये काम ज्यादा हो गया था। अच्छा, ये 3 साल पहले तकरीबन मोबाइल फोन आया उसके पास इस तरह से? मोबाइल तो शुरू से था उसके पास, फिर भाई को नहीं पता चला था ना उसकी। वो कहता था नहीं राशिदा बहुत अच्छी है, राशिदा करना। हमने आना कहना राशिदा बड़ा काम करती है, आप खुद कर लो। घर में 3 बहनें हैं, 3 भाई हैं, फैमिली इकट्ठे होना ना। उसने सबसे अलग ही बैठती थी, हमारे साथ नहीं बैठती थी वो। रिश्ता ये किस तरह से हुआ था भाई का? रिश्ता तो पसंद का तो नहीं था? नहीं, खुद से आप लोगों ने अपनी मर्जी से किया? आप लोगों के खानदान की है ये? बस दूर से दूर की है, इतनी नजदीक। पसंद करके लेकर आए थे ना इसको? हाँ। शादी के कितना अरसा बाद, जाहिर है खवातीन घर पर होती है, मर्द तो चले जाते हैं, कितना अरसा बाद पता लगा था कि भाभी की हरकतें ठीक नहीं है? शुरू से ही ऐसा थी।
डे 1 से ही ऐसी है, शुरू दिन से ऐसी ऐसी है? थी, तो बस आप लोगों ने फिर 14 साल कैसे कंप्रोमाइज करवाया उनका? बस हमने ही ना बात करते थे कि हम नंदे हैं, वो रिश्ता ऐसा हमारा घर खराब करती हैं, हमारा घर खराब करती हैं। अच्छा। तो हम अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह पाक भाई को खुद से पता चले, हम नहीं बात करते। अच्छा। 1-2 दफा हम पार्क में भी गए हैं ना, इकट्ठे घूमने गए हैं ईद पे। अच्छा। तो वहाँ भी इसके यही हाल थे, किसी को बुलाती थी बुला वहाँ पर? लेती थी वहाँ पे। अच्छा। और मैं आप लोग इधर जानते थे? हम तो जानते थे। तो इसका मतलब फिर आप लोगों को हर चीज का इल्म था? बस हम क्या करते, बच्चों की खातिर हम भी नहीं कुछ कहते थे कि हमारी बच्चियां 3 बच्चियां, 3 बच्चियों के बाद मन तो मुरादों से एक बेटा पैदा हुआ था एंड पे। अच्छा। हसनैन छोटा बेटा। अच्छा। तो इसलिए कहते थे हमारा भाई, हमारे भाई का घर सहारा आबाद रहे, बस इसी वजह से भाई ने भी पूरी कोशिश जी जान लगा के की है। उसको मरी तक लेके गए, सैरें करवाई। जब उसने जिद की मैंने कसूर जाना है, मैं घर गिरवी लेके दिया। फिर अच्छा। इतना 12 लाख का इतना प्यारा प्लॉट था, वो बेच के कसूर गए अच्छा। कि ये खुश रहे, मैं इसको खुश रखूं। अच्छा। बस वहाँ गए, वहाँ भाई ने फिर एक तो हम अकेले हो गए थे ना, यहाँ तो चलो जी कोई शिकायत लगाए, या वहाँ पे ना माँ ना नंदे, कोई भी नहीं, वहाँ पर आजादी थी, आजादी। वहाँ फिर भाई ने खुद इसका ध्यान रखा और पकड़ा इसको, कसूर में ही पकड़ा इसको ज्यादा। जब भाई ने मजीद नामी बंदे के साथ इसको पकड़ा, उस टाइम बाहर रोड वगैरह पर कहीं पकड़ा? हाँ जी, वो ना मदरसे बच्चियां दाखिल करवाई थी। अच्छा। मदरसे में, यहाँ स्कूल पढ़ती थी, वहाँ मदरसे दाखिल कराई हैं बच्चियां। तो भाई को शक था, उसने कहा कि मैं आज ना इधर ही रहूंगा इस घर में ही, तो आप ना बच्चियां ले आना। अच्छा। तो मैं आज रात नहीं आ सकूंगा, शाम को जब बच्चियों को छुट्टी होगी ना आप ले आना। अच्छा। तो कहती है अच्छा ठीक है मैं ले आऊंगी। तो भाई रास्ते में बैठा हुआ था, उसको शक था। अच्छा। उसको शक था ना, तो उसने यकीन करना था। अच्छा। जब वो रास्ते में बैठा हुआ आया, भाई ने खुद बताया हमें, मैं रास्ते में बैठ गया और उस मजीद नामी शख्स के साथ आ रही थी, हंसती खेलती। अच्छा। फिर भाई ने उसको पकड़ा, कहा मैंने तो झूठ बोला था, तो मेरा शक तुमने यकीन में बदल दिया। अच्छा। ये मजीद जो है, इसकी और आपकी भाभी की उम्र के अंदर कितना फर्क है? काफी फर्क है, वो तो बड़ा है, बहू बेटियों वाला है। अच्छा। दामादों वाला है। अच्छा, मजीद मतलब बड़ा है? हाँ जी, उम्र वो में काफी बड़ा बड़ा है उससे। अच्छा। और उसके हो सकता है कि ताल्लुकात ना हो, वाकई में आप लोगों को कोई शक हो? नहीं, वो खुद वो बंदा ही ऐसा करेक्टर लूज बंदा, भाई का कहना। भाई का ही कहना है। भाई ने कोई चैट वगैरह भी इनके मोबाइल में पकड़ी थी, कोई तस्वीर होती है वो ना यहाँ के गांव के लड़कों की पकड़ी थी। अच्छा, मजीद के साथ भी ताल्लुकात है, गांव के लड़कों के साथ? एक हो तो ये बताया ना, करेक्टर लूज थी ना, इसलिए वजह से। इस तरह की खवातीन के साथ ताल्लुक खत्म करने का मतलब हम लोगों को इख्तियार है, हम लोगों को इजाजत है शरई तौर पर भी कि हम लोग इस तरह की खवातीन को आप लोग छोड़ कहा था, भाई को हम सब ने कहा था हम आपकी शादी भी करवा देंगे, आप कामयाब इंसान है, आपका काम करते हैं, आपका घर बार है, सब कुछ है, आप इसको भाई छोड़ दो। हाँ। कहता था मेरे बच्चे रुल जाएंगे, मेरी बच्चियां रुल जाएंगी, बस इसी वजह से मेरे बच्चे। अब वो बच्चों के बारे में सोचो, अब वो बच्चे कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? वो बच्चियां जो हैं इस टाइम तो वो फिर उसी खातून के साथ हैं जिसके कैरेक्टर पर आप लोगों को शक था। बच्चियों को एक दिन समझ में तो आएगी, आखिर पलटना इधर ही है उन्होंने। लेकिन एक इतने बड़े नुकसान के बाद अगर समझ आए तो क्या समझ आए? मारा हुआ है उनका, कोई हमारी माँ का सहारा था, हमारा सहारा। बिल्कुल बिल्कुल। आप माइक पकड़ ले जरा। बच्चियों का भी सहारा खत्म हो गया, ऐसा ही है। आखिर एक दिन उनको समझ में आनी ना कि हमने किधर जाना है। हम तो उस दिन को सोच के हमें भी रोना आता है कि उन बच्चियों का क्या हाल होगा जब उनको समझ में आएगी कि हमारे साथ हुआ क्या है। अभी तो शायद वो इस गम में हो या इस खुशी में हो कि हमारी माँ के साथ हम मौजूद हैं, हम कामयाब हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी। मना करते थे ना किसी वजह से, तो अच्छा। भाई उसको टॉर्चर भी करते थे, हम नहीं कहते, तो कहते तुम्हारा बाप इस तरह की हरकतें देखेगा तो मारपीट तो होगी घर में। वो बच्चियों को कहती थी तुम्हारा बाप नहीं सही, मुझे मारता है तुम्हारा। उन बच्चों को अब क्या पता कि ये किन हालात में मारता है, बच्चों को क्या पता। के सामने तो जो बाप है वही एक विलन होगा कि हमारा बाप हमारी माँ के ऊपर जुल्म करता है। उनको वजह का नहीं बताया गया। अंदर की बात तो नहीं ना पता थी कि किस वजह से मारता है। अच्छा, बेटियों की मुकम्मल सपोर्ट माँ के साथ है? बच्चों की बिल्कुल उनके साथ, बिल्कुल माँ के साथ। 2 बच्चे तो बिल्कुल छोटे हैं अभी, छोटी हैं अभी। एक बेटा और बेटी छोटे हैं, और 2 बेटियां जो है ना, 2 बेटियां जवान हैं। इस चीज का ख्याल उस माँ को नहीं आया कि जवान बेटियों की माँ, बेटियां ब्याहने की उम्र में वो खुद आशिकी और माशूकी में पड़ी हुई है। हमें तो यतीम कर दिया उसने, हमारी माँ का सहारा था, भाई बहुत अच्छा था।
किस तरह का भाई था आपके? और कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। ये भाई है, ये छोटा वो बड़ा भाई। मतलब 3 भाई थे। वो ये माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा। ये एक भाई समनाबाद लाहौर में रहते हैं और ठीक ये है। इमाम मस्जिद है, ये अपनी जगह पे रहते हैं। अच्छा। वो हमारा मतलब वो यहाँ पर मौजूद थे जिस उम्मीद पर बहनें अपने भाई के घर आती हैं, मेरे माँ के घर आती हैं। अब्बू नहीं ना हमारे हैं, तो इस अच्छा। वजह से हमारी बड़ी सपोर्ट भाई करते थे, हमारे पीछे जाना आना। हम भी कोई गमी घरों में हो जाती है, हम भी भाई के पास ही आते थे। बड़े समझदार हमारे भाई थे। घर में मारपीट होती होगी, जवान बच्चियां, जाहिर है जवान बच्चियों की माँ को बाप मारता होगा, चाहे किसी वजह से भी मारपीट होती थी। हाँ जी, होती थी। इतनी ज्यादा नहीं होती थी कि वो मजबूर करती थी, तो भाई कहते थे नहीं मेरी बहनें भी 3 हैं, किसी के घर में गई हैं, मैं तुम्हारे पास जुल्म नहीं करना चाहता, राशदा तुम ना ऐसे करो, हाथ जोड़ने तक राशदा ऐसे उसकी जुबान तकती थी। सारे लोग कहते थे कि तू क्यों इन्ना करना है, तेरी हाँ। जिद नहीं, तू क्यों इन्ना करना है, तू क्यों इन्ना करना है। कहता था मेरे बच्चे। अब जब ये सारा कुछ 2 हुआ है, मिनट में नाराज होके इधर, 2 मिनट में उधर, नाराज होके घर चली जाती थी। घर पास ही घर था। अच्छा, फिर मनाने जाते थे आप लोग? हमें भी जाना पड़ता था, खुद भी चला जाता था। मेरी अम्मी अच्छा। चली जाती थी, कहती थी मेरे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। फिर मना के ले आते थे। ये एक जो ऐसी औरत को खुरम जिसके बारे में सब कुछ पता था, लेकिन जाहिर है बच्चों की मजबूरी थी आप लोगों को। ये जो खुरम है ना, ये तो रहता ही हमारे घर था ना, ये तो उसको घर में उसका भी किरदार ठीक नहीं था। बहनों अपनी भाभीयों के साथ उनके मोबाइल से चोरी कर लेता था, उनकी यूएसपी निकाल के ले आता था। अच्छा। तो वो इसकी वजह से ना वो घर में उसको नहीं, इधर ही खाना खाता था, इधर ही उसके कपड़े धुलते थे, इधर ही रहता था। बाजी मेरे भाई ने कहना चल कोई नहीं भाई है उसका, चलो अच्छा। कोई नहीं भाई है उसका, कुछ नहीं होता। ये तो पता ही नहीं था कि उसने हमारे भाई को उठ के मार देना। अब ये जिस दिन आपकी भाभी ने ये सारी कार्रवाई डाली है, यहीं पर मौजूद थी या किसी बहाने से इस घर में आई है बच्चियों को साथ लेकर? भाई कहाँ पर था? 3 दिन पहले लड़ाई हुई है इनकी। भाई ने कहा मुझे हलवा बना दो। अच्छा। आवाज हलवा बना दो, तो कहती मैं तेरी नौकर, मैं नहीं हलवा बना के देना, मेरे को नहीं बांधा। फिर भाई खुद दुकान से गए, खुद हलवा बनाया, क्योंकि वो कुकिंग करते थे। 800 500 बंदे का ऑर्डर हालों में बनाते थे, उनका बड़ा ऑर्डर पे खाने तैयार करते थे, पकवान सेंटर उनका। तो उन्होंने खुद हलवा बनाया, अम्मी को भी दिया, खुद भी खाया। उसको कहा खा लो, उसने कहा नहीं, बच्चों को भी नहीं खाने दिया और खुद भी नहीं खाया। अच्छा। फिर चली गई है। भाई ने कहा जब तुमने मेरी माननी तो फिर तू चली जा अपने घर, पास में तो उसका घर है। चली गई। फिर उस बेटी माहम ने फोन करके कहा कि पापा आप किधर हो? बड़ी बेटी है ये? हाँ जी, 14 साल जिसकी उम्र है। हाँ जी, के उसने कहा मैं ना इधर हूँ, किसके घर काम कर रहा हूँ। पापा हम घर आए हैं कपड़े लेने। ठीक है। उनके आने से सामान बांध दिया, हर चीज ले गई है, और दरवाजा कुंडी अंदर से बंद की हुई है। तो वो आया, भाई को ऊपर चढ़ाया हुआ है उसने। अच्छा। तो माँ हमने सारा किरदार अदा किया ना, बाप को मनाने बड़ी बेटी ने? बड़ी बेटी ने और माँ ने, दोनों ने। अच्छा। बड़ी प्लानिंग। जब आए आपके भाई बाहर तो ये घर में मौजूद थी? हाँ जी, ये माँ बेटी दोनों मौजूद? हाँ जी, ये घर में मौजूद थी। दरवाजा खड़काया उन्होंने कि दरवाजा खोलो, फिर क्या हुआ? फिर नहीं खोला उन्होंने। अच्छा। ऊपर से बस उसके भाई ने वो गोलियां चलानी शुरू कर दी। ये जो भाई है जिसने गोलियां चलाई हैं, उसकी उम्र 17 से 18 साल आप बता रहे हैं। हाँ जी। खुरम उसके पास क्या उसकी इस तरह की एक्टिविटी थी? क्या काम करता था? उसके पास असला था? कोई भी नहीं। मैं बता तो रही हूँ कि घर में भी चोरियां करना उसका काम था। भाई मारते थे उसको, तो वो इधर ही रहता था, यही पनाह देती थी, और ये उसके काम करती थी, वो उसके काम करता था। जहाँ पर आप लोगों का ये घर है, इर्द गिर्द काफी और भी घर है, मोहल्लेदार मौजूद हैं। भाई को गोलियां लगी, मोहल्लेदार नहीं आए, किसी ने मदद नहीं की भाई की? आए हैं, उसने खुद राशिदा ने घर हाथ में पिस्टल पकड़ लिया। ये हमारी साइयों ने कहा है कि अब सुकून आ गया, उसको मरवा दिया बेचारे को। निकले हैं ना, मतलब मोहल्लेदार सब आए हैं। सब आए हैं। उसने हाथ में पिस्टल पकड़ा हुआ है, राशिदा ने कहती है हमारे घर का मामला है। भाई सहक रहा है, पानी मांग रहा है। उसको भाई पानी मांग रहा था। भाई को होश थी? अभी होश थी। तो कहा पानी दे दो। कोई आई है हमारी मसाई, वो सब्जी लेके जा रही थी, कहता पानी मांग रहा है। कहती पीछे हो जाओ, कोई ना आए, हमारे घर का मामला। और खुद ही गाड़ी पे डाल के खुद ही ले गई हमें। फिर हमसायों ने हमें फोन करवाया, उनके पास नंबर उनका, अब अपने बाप को मरवा दिया,
तो अपनी फुफ्फो को बताओ, अपने ताए को बताओ, चाचू को बताओ कोई है। हम तो हॉस्पिटल पहुंचे। आपके भाई को यहाँ से लेकर कौन गया? वही लेके वो गई, खुद लेकर गई है? खुद ही लेके गई। अच्छा, खुद लेकर गई है और उसके बाद भाई आपका हॉस्पिटल जाने से पहले ही दम तोड़ गया था, ऐसा ही है? उसके बाद इतला आपको राशिदा नहीं दी? उनके बच्चों ने, माहम ने दी है। हमारे मामू ने मार दिया पापा को, गोली मार दी है। हमारे मामू ने गोली मार दिया पापा को। मामू फरार है? मामू फरार है। मामू पकड़ा गया है अब? 5 दिन बाद, अभी 5-6 दिन हो गए, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। हमारे घर कोई पुलिस नहीं आई। इंसाफ चाहिए हमारे भाई बहुत अच्छे थे। आप लोगों ने एफआईआर में राशिदा को भी नामजद किया? हाँ जी। क्यों? राशिदा को गिरफ्तार किया पुलिस ने? नहीं, किसी ने नहीं किया, वैसे दंदनाते फिर रहे। ताल्लुकात को जब खींचा जाता है ना, तो ताल्लुकात का ये अंजाम निकलता है। एक औरत है या एक मर्द है, दोनों में से अगर किसी का भी किरदार इस तरह का है, मशकूक है, आपकी नहीं निभ रही, छोड़ दें, अलहदगी इख्तियार कर लें, इस तरह के बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। मकतूल की वालदा हमारे साथ मौजूद है, उम्र के इस हिस्से में मौजूद हैं कि उनसे बात करना और उनसे उन चीज़ों का जवाब लेना मुश्किल है, लेकिन जाहिर है माँ जी से भी बात करने की कोशिश करते हैं, जो कि इस टाइम सदमे की हालत में है। इससे पहले माँ जी का एक बेटा जो है वो इस दुनिया से जा चुका है और ये दूसरा जवान बेटा है जिसकी जो दुनिया से जाना है वो माँ जी को एक बड़े दुख में, एक बड़े सदमे में डाल गया है। माँ जी से भी बात करते हैं और भी इनके रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। बेटा मेरिया गल्ला खत्म हो गई ने। अस मैनू तो इंसाफ चाहिए। मेरे कोई पता नहीं आया, कोई आया नहीं पुलिस वाला। पुलिस वाला कोई नहीं आया? कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए ने। 6-7 दिन हो गए, कोई भी नहीं आया? कोई नहीं आया। मैनू इंसाफ चाहिए, मैनू और कुछ नहीं चाहिए। मैनू सिरे इंसाफ चाहिए। मैनू गल को नहीं आ रही, मैनू इंसाफ चाहिए। भाई पानी मांग रहा था, भाई को होश थी? अभी होश थी तो कहा पानी दे दो। हमारी मसाई वो सब्जी लेके जा रही थी, पानी मांग रहा था, कहती पीछे हो जाओ कोई ना आए। हमारे घर का मामला। जब भी हमारे साथ फ़ोन पे बात हो या मुलाकात हो, वो उसका ये कहना था कि मुझे मारने की धमकी दे रही, ये मुझे मरवाने वाली, किसी के ज़रिए से उसका कहना था कि मुझे मरवाने वाली, अनकरीब मुझे मरवाने वाली। मकतूल के भाई और वालदा इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपके भाई को क्या कोई नशे की आदत थी? जिस तरह का आपकी जो भाभी है उनका कहना है कि आपका भाई अक्सर नशे में रहता था। नहीं, वो कोई नशा नहीं। वो 2 साल से तकरीबन ना 81 की नशे की गोलियां ना खाने में डाल के ना उसको देती थी। जब जिस दिन नहीं देते, वो खाना बाहर से खा आता था, उस वक्त जागता रहता था। अच्छा। तो वो सारे ये ऐसे कभी कोई ये नशा करता है, फलां करता है। आप लोगों को किसने बताया कि उसको गोलियां देती थी? वो खुद बताता था कि मुझे मुरवाना है, लोग भेजती है मेरे पर। अच्छा, भाई को पता नहीं लगता था उसको नींद की गोलियां दी जा रही हैं? किस तरह से देती थी? किसी चीज में मिलाकर? हाँ, खाने में जब खाना पकाती उसमें मिला के वो सोया। ये मैं अपना काम करती रहूं, ये सोया रहे, मेरे ऊपर निगाह ना रखे। मैं फोन पे सारी रात फोन पे वीडियो कॉल, ये वो वीडियो कॉल चलती थी रात सारी? अच्छा। तो ऐसे सिस्टम उसने लगाया हुआ था। अच्छा। तो वो बड़े आगे चले गए। वो तो हर दफा जब भी पीछे भी मिला है, इसने मुझे मुरवा देना है। भाइयों को उंगलें लगाती थी, ये ऐसे करता है, मेरे साथ जुल्म करता है। कितने भाई हैं उसके? 3 भाई हैं। अच्छा। उसके तो तीनों कह रहे थे हमने इसको नहीं छोड़ना, हमने मार देना, ये ऐसे वैसे इल्जाम लगाती। ये भाइयों को हर टाइम उनके खिलाफ ही करती, ये ऐसे करता। आखिरकार उस दिन मिलाया उसको। फिर दूसरे भाई भी आए, लेकिन उन्होंने असला प्रोवाइड किया, उन्होंने सारा कुछ भाई को आगे। तीनों भाई साथ आए हैं? हाँ जी। अच्छा। वो पीछे रहे, उन्होंने पिस्तौल उन्होंने दिया। ये तो हल्का था ना, बच्चा था। अच्छा। इसको सारा कुछ किरदार मेन इसकी बीवी का, इसने बुलाया भी आ जाओ, भाइयों को भी फोन करके। इसने एक भाई को पहले घर बैठा, दूसरों को भी आ जाओ, वो आ गया। अच्छा। तो वो बस मोटरसाइकिल गली में आके ब्रेक लगाई मोटरसाइकिल, ऊपर से उसके भाई ने फायर मार दिया। वो सीधा इधर लगा सीने, वो नीचे बस उधर ही गिर पड़ा मोटरसाइकिल पे। भाई पानी मांगता रहा। उसके बाद ये मोहल्लेदारों को करीब क्यों नहीं था करीब आने दे रही? क्या वजह? वो कह रही थी कि कोई नहीं, हमारा घर का मामला, इधर घर का मामला है, बंदे को मार दिया, घर का मामला है, उसने कहा सामने वाले। लेकिन ये इस हालात ऐसे हैं, कोई गवाही नहीं देता। हमने उनको कोई आगे बढ़कर 302 का मुकदमा, कोई नहीं हमारे साथ खड़ा, कोई गवाही नहीं। हम दई, मेरा भाई भी है, मैं भी,
अच्छा। खुद कोई नहीं आगे नहीं कोई आ रहा, कोई नहीं शहादत। पुलिस वालों ने कहा जी शहादत चाहिए, कोई दे ही नहीं रहा, कौन दुश्मनी डालेगा किसी से। वो ठीक है। 302 आप बड़े भाई हैं? जी जी बिल्कुल। आपके साथ भी तो दुख शेयर करता होगा ना आपका भाई? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जब भाई को पता था कि खाने में मुझे नींद की गोलियां दी जा रही हैं या मुझे, उसने पागल किया हुआ राजदा, वो उसको कहा, पीछे भी झगड़ा हुआ, उसको कहा छोड़ दे, ये स्लैक नहीं, ये पीछे ये उनके घर मनाने गया तो फायरिंग इन्होंने की है उनके घर जा। अच्छा, इससे पहले भी ये हाँ हुआ हुआ है? 2 महीने अच्छा। पर्चा इसका कराया उन्होंने। अच्छा, मनाने गया तब भी फायरिंग की है? हाँ, उधर फिर वो बच गया, ये दौड़ गया उधर। सामान भी इसका काम करने वाला था वो सारा ना, उसको वो भी पकड़ लिया, फिर चौकी पे दे के इधर था जब अच्छा। चौकी पे, मोटरसाइकिल 2 महीने उधर रही है थाने में। अच्छा। तो पर्चा ये हमें ऊपर हम उसके ऊपर हमला कराया। फिर मैंने कहा उसको छोड़ दो, ये स्लैक नहीं, ये गांदा, ये आपको गले पर है। नहीं मैं नहीं छोड़ता। वो ऐसा इसने फायरिंग हो गई ऊपर, उसके बाद भी नहीं फैसला लिया इस खातून के लिए हाँ, कि मैं इसको छोड़ देता हूँ, कहता बच्चे मेरे बच्चे। फिर कहता 2-3 दफा इसे हमले, इसका यही भाई आता था लड़कों को लेके, या आता था रात को ना, तो लेटे फायरिंग करने कोशिश बड़ी देर लेकिन ये चुकन्ना था, ये पिस्तौल ये भी लाइसेंस ये भी रखता था। अच्छा। उस दिन भी नहीं इसको मौका मिला, ये आके खड़ा हुआ है तो उसने मार उस दिन भी इसके पास मौजूद था? अच्छा। वो निकाल के ना निकालने लगा लेकिन मौका नहीं मिला। हाँ, तो वो ही इसने निकाल के जो करती रही बदमाशी किसी को। तो इस महल्ले में थी शादी, इन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई थी, शादी थी, वो सारा टोटल सामने घर है, सारा शादी पे गया, कोई बंदा भी नहीं था। अच्छा। कोई बंदा नहीं थी, जिधर आपने गाड़ी खड़ी की, बारात चली, कोई बंदा, इसने भी जाना था। अच्छा। उधर शादी हो सकता है मौका तलाश कर रही हो। हाँ, मौका इसने पूरा प्लानिंग करके आई, पूरी उसमें फायरिंग भी हो, ये वो जो अच्छा, भी लोग ना इकट्ठे हों, ठीक है। और कोई बंदा इधर था ही नहीं, तो पता नहीं उनके साथ क्या पकड़ लेते या आप आके। फिर इसको ये मौका, फिर इसने अपनी मासी की गाड़ी ना पहले मंगवाई हुई थी दानों के लिए, गंदम के लिए, उस पे डाल के फिर लेके कसूर गई। तो बेटी ने फोन किया कि ताया अब्बू को गोली लग गई, मामू के साथ लड़ाई हुई, तो इसके गोली रास्ते में मैं काने तक पहुंचा उधर समनाबाद से। अच्छा। मैं आ रहा तो पता चल गया ये फौत हो गया। ऐसे हुआ हमारे साथ। माँ जी। हाँ जी। की हाल है? ठीक हो? ठीक हो? ठीक ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੋਹ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਰੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਰੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਬਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਨੋਹ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ, ਕੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਸਨ, ਨੋਹ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ? ਤਾਂ ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਬਸ ਦਿਨ? ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵਾਹ ਮੈਂ, ਉਹ ਲੀੜੇ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਰਾ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਜਦਾ ਵੱਲੋਂ ਖਾ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਖਾ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਖਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰ रोटी। महल्ले से खुद ही लोग दे देते थे? तलक बड़ा सी मेरा। अच्छा। हाँ, मैनू रोटी आपे ही दे दिंदा सा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? बस मैनू पता लग गया ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀਤਾ ਜੋ ਗੋਲੀ ਮਰਾਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਕੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ? ਘਰ ਚ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗਲਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸਮਝ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਆਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ। क्या कहती थी? कहती थी माँ की चीजा से लेट नहीं है। हाँ, माँ की जगह पर क्यों लेट रही हैं? इनको कहती थी? अच्छा। हाँ, मैं पुत्तर नूं दसदी नहीं, मैं मकाल पता नहीं मेरा। तुसी लड़ाई दी वजह तो नहीं सी पुत्तर नहीं सी पता। अच्छा, बस। तो इनके साथ मैनू इंसाफ चाहिए, मैनू वज़ीर आज़म दा इंसाफ चाहिए, मैनू और कोई गल नहीं आ रही पुत्तर मैनू कोई गल नहीं आ रही। मैं गल्लां मेरियां खत्म होइयां, मेरियां गल्लां खत्म हो गईयां, मेरियां गल्लां खत्म हो गईयां बेटा, मेरियां गल्लां खत्म हो गईयां ने। मेरे को बस मैनू तो इंसाफ चाहिए, मेरे कोई पढ़न नहीं आया,
कोई आया नहीं, पुलिस वाला नहीं आया। पुलिस वाला कोई नहीं आया? कितने दिन हो गए आज? 7 दिन हो गए ने। 6-7 दिन हो गए, कोई भी नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ? ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਤਲਾਕ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੌਲਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰੀ 30-35 ਮੈਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੇ ਵਰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਗੋ ਵਰਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ? ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਫੜ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੁਰਨੇ ਚ ਰੂ ਨੇ ਅੰਮੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਆਪ ਪੈ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰਿਆ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੱਥ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਿਨ ਵੇਖੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਖਾਨ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੱਜ ਕਰਨ ਗਈ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਘਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜੱਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਵਾਂ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ 2 ਸਾਲ ਹੋਇਆ। 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ? 2 ਸਾਲ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ? ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੀ। बच्चियों की सपोर्ट माँ के साथ है। आप लोगों, जाहिर है आप लोगों का हक है, आप लोगों की नस्ल है वो। आप लोगों ने कोशिश नहीं की बेटियों को अपने पास ले आए? आप लोग एक ऐसी औरत के पास नहीं। आप माइक पास ਜਨਾਜ਼ੇ ਆਈਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਇਆ। कोई नहीं, बस 10 मिनट इंज फेरा मार, पता नहीं किंदे उसे वेले फिर चली गई हैं। हाँ जी, मतलब आप लोग नहीं चाहते अब आपकी जो नस्ल है वो आप लोग? साडे कोल तां पसंद ही पहले, सानू तां बड़े चंगे, मां ने तरबियत ही ऐसी कीती है, इंज दे ने। हालांकि ਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 500 ਦੇ ਨੋਟ, ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਾ ਕੇ ਮਗਰ ਦੇ ਕੇ ਬੜੇ ਵਿਆਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। 500 ਨੋਟ ਉਹ ਦੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਚ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਸੂ, ਫੇਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹ 20,000 ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੂ। ਉਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ, ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਰਾ, ਜ਼ੇਵਰ, ਸਾਡਾ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਗਈ? 3 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਤੋੜਿਆਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਲੈ ਗਈ, ਮੌਕਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਲੈ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, मैंने कुछ नहीं चाहिए। उस जगह पर चलते हैं जहां पर उसके भाई ने खड़े होकर ये तमाम तर कार्रवाई की, जिस तरह से इनके बेटे को टारगेट किया गया, जिस तरह से पूरा पहरा किया गया, रैकी की गई, उस जगह पर चलते हैं। वो जगह भी आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये वो जगह मौजूद है जहां पर उसका जो वो साला है वो खड़ा हुआ था। ठीक है, वो यहाँ पे पहरे पे खड़ा था कि सामने से, अगर मैं दिखाती चलूँ, सामने से कोई भी बाइक वगैरह आएगी इस गली में तो यहाँ पर खड़े होकर नजर आएगी कि बाइक इस घर तक आ रही है। यहाँ से ही खड़े होकर फायरिंग की गई है? जी बिल्कुल, हमें जो अहले मोहल्ला ने बताया, जिन्होंने जहाँ आवाज़ तक सुनी आमने सामने वालों ने, उन्होंने अपना नाम लेने से गुरेज करवाया। अच्छा, वो इस वजह से उन्होंने बोला कि बेटी उसकी बड़ी यहाँ पे खड़ी रही दीवार के, बेटी भी यहीं पे खड़ी है। ठीक है, और उसने लेटे हुए मामू को बताया है कि जी
पापा आ गया अच्छा गली के अंदर। अच्छा जी जी, पापा गली के अंदर आ ठीक गया है। और जैसे ही वो गली के अंदर इंटर हुआ, दरवाजे पे आके उसने बाइक से, कहने वाले ने कहा कि एक टांग अभी नीचे उतारी है, तो वहीं से उसने 3 फायर किए। भागा कहाँ से है वो पीछे की तरफ से भाग गए। यहाँ से वो भी जी। जगह दिखा देते हैं। यहाँ पे खड़े होकर यहाँ पे बाइक रुकी होगी और यहाँ से ही उसको फायर किया होगा, गोलियां मारी होंगी और यहाँ से फिर वो फरार हुआ है। पीछे के दरवाजे साला है उसका, वो यहाँ से फरार हो गया है। कहा जाता है कि बेटियों से डर नहीं लगता, बेटियों के नसीबों से डर लगता है। लेकिन हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि बेटों के भी अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। जब बेटों के नसीबों में इस तरह की औरतें आ जाती हैं ना, जो कि पूरा का पूरा आशियाना उजाड़ देती हैं, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अफसोस रह जाता है, इस डर से कि हमारी औलाद जो है वो ख्वार हो जाएगी। अपने रिश्ते को, इस तरह के रिश्ते को जो कि खुद अपनी मौत मर चुका, उसको लेकर मत चलें। एक नई जिंदगी का आगाज करें, छोड़ दें इस तरह के ताल्लुक को जो सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान देंगे। इजाजत दें मुझे, मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। अल्लाह हाफिज।